Jai Jain everyone. I am Saloni Jain, Joint Secretary of Jito Ladies Wing Jaipur. Welcome all the Jito members, our committee members and our speaker Ms. Runaji Karnawat, who is also the chairperson of Jito Ladies Wing. It is indeed our pleasure to have you all here with us. And just to note, the fees collected for this session will be given as charity to Gau Seva Parivar Samiti, Jaipur. But before we start, as per our ritual, I would request all the committee members to join your hands for Namkar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Uvejayanam, Namo Luve Save Sahunam, Eso Panch Namo Karo, Tave Papanasano, Manglam Cha Savesi, Padmam Havai Mangalam. In today's session, we all will upgrade our knowledge of an art called graphology, the study of handwriting, printed symbols to infer a person's character. But to understand it more clearly, I would request Ms. Khushbuji Bakliwal and Ms. Meghna to kindly take the session further. Khushbuji. Khushbu, your voice is not coming. Khushbu, please, we can't hear you. Please unmute yourself. Is it, am I audible? Yeah, now you're audible. Khushbu, I would like you to please speak about Shashat and few lines for Runaji as well. Yeah, thank you, Saloni, for the wonderful welcome. So as they say, when women support women, incredible things happen. Yes, that's what we believe here at Jito, to support each other, to be each other's ally, and embracing, empowering each other so that we grow together as an organization. And we have created a striking example of the same by doing 8 consecutive sessions of Sashakt. So a big round of applause for each and everyone here who has been a part of Sashakt, the whole executive team, and everyone who has supported it wholeheartedly. A big thank you to Garima, whose brainchild Sashakt was. And we are taking this session forward by our very own Runaji Karnawat. Yes, she's our chairperson, very dynamic and a versatile personality. And I would request Meghna ji to kindly take the session forward and introduce her. Thanks a lot, Khushbu and Saloni. Jai Janendra to all the members of Jito Ladies Wing and other participants. Handwriting is really a brain writing, and one cannot fool their brain. How hard they may try, it is very surprising for me to learn that handwriting can reveal one's character, strengths, weakness, and abilities. To unfold the layer of science behind the graphology, to unfold the layers of science behind the graphology, we have an expert with us today, our very own chairperson of Jito Jaipur Ladies Wing, Ms. Runa Karnawat. She doesn't need any introduction. Still, I would love to share her few achievements here. Runa is the founder of Out of Syllabus and the Seed Preschool. She is an MBA and a professional graphologist. She works closely for the development of kids in non-traditional ways of storytelling, conducting workshops, and organizing different skill development programs. She is the integral part of our Jito Ladies Wing, so her introduction is incomplete without showing you few glimpses of her journey with this prestigious group. So here we have all put together this small video to flash back few memories we all have spent together to make this ride a joyous one. And not to forget, Ms. Runaji, there is an element of surprise from our committee members also for you. I hope you like it. Again, please, can you play the video? Aryan ji, we are waiting for the video.
I think so. There are some technical issues, so we'll play the video afterwards. Now, without taking much time, I would like to invite Runa to start much awaited session. So over to you, Runa. Thank you so much, everyone. Thank you for joining in. And thanks, a big thanks a lot to whole committee. Our pleasure. You guys have done a wonderful job. Such an overwhelming response. So many of you have joined in. That give me an immense pleasure and gratitude from my bottom of my heart. I'm really thankful for all of you who worked hard 4 or 5 days for the program. Thank you so much for all the dignitaries who have joined in. Thank you so much for all the members who have logged in for the session. Hope I do justice to the 1 hour which you have given to me today. So, am I audible, Meghna? Yeah, you're audible. Okay, done. Okay. So, what is graphology? पिछले 4 दिन से पूरी एग्जीक्यूटिव कमिटी मेरे से पूरा सेशन फोन पे जा रही थी. अरे हमें पहले बता दो क्या होता है ग्राफोलॉजी, अरे हमें पहले बता दो. पूरी की पूरी टीम पूछ रही है क्या होता है. सारे लोग जो एनरोल कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, वो सब जने पूछ रहे हैं क्या होता है. ग्राफोलॉजी इज सच अ huge science that I just cannot summarize it into like one word. So like the most easiest thing or the most easiest way to summarize it कि जो आपकी handwriting है वो आपकी brain writing है. ये सबसे easy way है इस बात को समझाने का कि जो भी आपकी handwriting है वो आपकी brain writing है. आपके थॉट प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी चलता है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो पूरा का पूरा आपकी हैंडराइटिंग में रिवील होता है. सब सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है. इज इट समथिंग विच इज कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी? इज इट समथिंग विच इज कनेक्टेड टू न्यूमरोलॉजी? नहीं, ना एस्ट्रोलॉजी ना न्यूमरोलॉजी, किसी चीज से कुछ भी कनेक्शन नहीं है. दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस कि आपका ब्रेन और आपके फिंगर्स कनेक्टेड हैं. नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझाती हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर दिन भर thousands and thousands ऑफ थॉट्स आते हैं. क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं? कैन समबडी राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारे दिमाग में कितने थॉट प्रोसेस आते हैं दिन भर में? As of now तो बहुत सारे आते हैं because of lockdown, कुछ करने को ही नहीं है. नहीं, बिना लॉकडाउन के भी सलोनी हमारे दिमाग में अनलिमिटेड नहीं, कुछ हम क्या कुछ नंबर्स में डाल सकते हैं? क्या एक अप्रॉक्स नंबर डाल सकते हैं हम जो हमारे? That's what I guess 5,000 somewhere in between. Actually, it is countless. It's countless. I know exactly. अस्मिता आप बिल्कुल सही है. 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में एक दिन में आते हैं. 60,000 थॉट्स. और जो वो लोग यहाँ पे बैठे हैं जो लोग बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं सोचती, वो सब अब ये बोलना छोड़ दें, क्योंकि आप मिनिमम 60,000 थॉट्स के साथ तो गुजरते हैं इस पूरे दिन में, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते. या तो आप मेडिटेशन में चले जाएं, या तो आप कोई ऐसे महात्मा गुरु बन जाएंगे कि जिन्होंने अपने दिमाग पे ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि उनके एक भी थॉट नहीं आता दिमाग में. बट अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे दिमाग में अराउंड 60,000 थॉट्स आते हैं. अब वो 60,000 थॉट्स हमारी पूरी बॉडी पे कहीं ना कुछ इम्पैक्ट तो करते ही करते हैं. True. तो वो 60,000 थॉट्स सबसे पहले इम्पैक्ट करते हैं हमारे हाथों पर. कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच के देखिए इस चीज को कि जहां हमें हल्की सी एंजाइटी होती है, या हमें किसी चीज का स्ट्रेस होता है, कोई डिप्रेशन होता है, या कोई खुशी होती है, कुछ भी होती है, तो हमारे फिंगर मूवमेंट्स, हमारे हैंड मूवमेंट्स
मतलब सबसे पहले चेंज होते हैं। एंजाइटी होगी तो हाथ ऐसे हो जाएंगे, या फिंगर्स हमारी ठंडी हो जाएंगी, या अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारे फिंगर्स ऐसे ऐसे करके मूव करेंगी। मतलब कुछ ना कुछ मोमेंट हमारे इन फिंगर्स का होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारे न्यूरो सेल्स हैं सारे, वो हमारे इन फिंगर्स से कनेक्टेड है। आई होप मैं जो लैंग्वेज काम में ले रही हूँ वो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल हिंदी में है ये पूरा प्रोग्राम, मैं पूरा प्रोग्राम हिंदी में ही प्लान किया है, सो दैट ईच एंड एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। अब हम इस चीज को समझते हैं कि हमारे दो तरह के ब्रेन्स होते हैं। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन एंड कॉन्शियस ब्रेन। आप ये सोच रहे होंगे कि हैंडराइटिंग की बात करनी है, ये क्या दिमाग समझाने लग गई है। जी हाँ, पहले ये समझना जरूरी है कि किस दिमाग को फिंगर्स से हैंडराइटिंग बनाकर आप उतार रहे हैं। एक हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक हमारा होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिससे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, कॉन्शियस माइंड जिससे सलोनी अभी प्रोग्राम देख रही है, कॉन्शियस माइंड जिससे मेघना खुशबू अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, या अभी उन्होंने जो भी स्पीच दी थी वो कॉन्शियस माइंड से दी थी। सबकॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम वो एक्टिविटीज करते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल सबकॉन्शियस माइंड का, जब हम नहाने जाते हैं, क्या हमें ये सोचना पड़ता है कि अब मैं नल चलाऊंगी, अब उससे पानी निकलेगा, फिर पानी भरेगा, फिर मैं मग उठाऊंगी, नहाऊंगी? नहीं, हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रोसेस वो सबकॉन्शियस में हमारे फीड हुआ है। राइट। हमें कुछ ऐसे हमारे प्रोसेसेस होते हैं दिन भर के, जैसे खाना खाना आप यहाँ से उठाएंगे, मुंह में ही ले जाएंगे, नाक में और कान में नहीं घुसाएंगे। छोटा बेबी होगा वो यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी लगा लेगा, यहाँ भी लगा लेगा। आप अपना पूरा मुंह नहीं भरेंगे खाना खाते हुए। क्यों? क्योंकि आप सालों से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, आपने ये सब कुछ करते हुए देखा है लोगों को, तो ये आपके सबकॉन्शियस में फीड है। अगर रात को 2 बजे भी आपको उठकर कोई नहाने को या खाने को बोलेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारे स्टोर्ड होते हैं, दिन भर आते हैं जाते हैं। तो हम कोई भी चीज अभी प्रैक्टिकल में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा, कितने थॉट्स आते हैं, तो आपकी मेमोरी के अंदर अगर उसका आंसर आपने कहीं सुना है तो वो स्टोर्ड था। आपके सबकॉन्शियस ने कॉन्शियस से कनेक्ट किया और जवाब दिया। सीधा कॉन्शियस जवाब नहीं देता है। हालांकि हम कॉन्शियस को बहुत क्रिएटिव माइंड बोलते हैं, क्योंकि विचार वही करता है, एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, पर सबकॉन्शियस के अंदर हमारे थॉट्स सेव होते हैं, जिससे हमारी हैंडराइटिंग बनती है। अब आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारा ये हो जाता है कि क्या काम आएगी हैंडराइटिंग? अब तो हम पूरे डिजिटल हो चुके हैं, हम तो कुछ लिखते ही नहीं हैं। क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि हम थोड़ा सा लिख लें? देखिए, ये जो फिंगर मूवमेंट्स होते हैं, आप जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ देख रहे हैं, आप जो लोगों के अंदर एंजाइटी इंक्रीज हुई भी देख रहे हैं, वो उसके पीछे का रीजन है कि आपके सिर्फ ये टिप्स काम आते हैं। आप जब कीपैड के ऊपर फिंगर लगाते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स काम आते हैं। इसमें कोई आपके हैंड का मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई आपकी फिंगर का मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ एक एंगल पे आप मूवमेंट कर रहे हैं बस। आप कोई ऐसे ऐसे या यूं स्टाइल में और ऐसे करते हुए तो कीबोर्ड के काम नहीं करते। आप बिल्कुल सिंपल बेसिक टक 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 टक, मोबाइल भी है तो आपका सिर्फ थंब काम में आ रहा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस these days, especially in teenagers, और जो बच्चे 10 years 11 years से above हैं, उनके अंदर ये इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से है कि they've stopped writing. I would always encourage every one of you at least write 5 to 6 lines a day, so that आपके जो न्यूरो मूवमेंट्स हैं और आपके जो ब्रेन मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल रह सकें। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं आपके हैंड के अंदर जो आपकी हैंडराइटिंग से मूव करते हैं और आपकी ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे आप हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं।
छोटा बच्चा होता है उसे प्ले स्कूल के अंदर हम काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स सिखाते हैं, हैंड मूवमेंट्स सिखाते हैं, और हम ये बोलते हैं इसकी फिंगर स्ट्रांग होंगी, इसका ब्रेन स्ट्रांग होएगा। उस सब चीजों के पीछे का रीजन ये होता है कि हमारी फिंगर्स और हमारे ब्रेन कनेक्टेड हैं। राइट राइट, दोनों बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत 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 सिमिलर वर्ड्स हैं। WRITE RIGHT, साउंड दोनों सेम करते हैं, मतलब दोनों का टोटली ऑपोजिट है। सही तरीके से सही लिखिए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सही तरीके से सही लिखने से क्या फायदा हो सकता है। एंड नॉट टू बी मिस्ड, मैं आज आपको इतने सारे टिप्स दूंगी जिसमें आप एक बेसिक हैंडराइटिंग जो आपके पास आएगी, उसमें आप कम से कम 25 से 30 40 ट्रेट्स निकाल के ये बता सकते हैं कि ये किस तरीके का इंसान है। अब हमने ये बेसिक सी बात समझ ली कि कैसे हमारे ब्रेन के मूवमेंट्स होते हैं, कैसे हमारे फिंगर के मूवमेंट्स होते हैं। अब सेकेंडली ग्राफोलॉजी क्या होती है, ये मैं अब आपको आगे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। मेघना, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन दिखेगा या नहीं दिखेगा? It's visible. ठीक है। ग्राफोलॉजी, साइंस ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस, एक ऐसी साइंस है जिससे हम सिर्फ एक पेज पे लिखे हुए कुछ शब्दों से सामने वाले के बारे में ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है, या उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स करे जा सकते हैं, या उसकी क्या वीकनेसेस हैं। हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Graphology is the study of people's handwriting in order to discover what sort of personality they are. अरे बात करने से भी तो पता चलता है कि किस तरह की पर्सनालिटी हैं, तो क्या हर जगह हर इंसान की हैंडराइटिंग लिखाते रहेंगे? क्या आपने ये चीज देखी है कि कई बार हम ये बोलते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा इंसान निकलेगा, अरे बात करने से तो ये ठीक लग रहा था, अरे जब हमने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपॉइंट किया था तब तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था, अरे ये तो बहुत कम बोलती है, मार्केटिंग में कैसे चलेगा, अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलती है, इतना बोलेगी तो बाकी दूसरे सारे एम्प्लॉयज को भगा देगी, ये आदमी पहले तो बहुत लॉयल लग रहा था। क्या इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं? जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सबके दिमाग में आते हैं। ग्राफोलॉजी हमें किस तरीके से मदद कर सकती है? ग्राफोलॉजी हमें खुद को समझने में मदद कर सकती है। ग्राफोलॉजी एक बच्चे को समझने में मदद कर सकती है, उसको काउंसल करने में मदद कर सकती है। एज अ पेरेंट आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये रीजन है जिस वजह से मेरा बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्या आपके लिए ये इजी नहीं हो जाएगा कि आप उसे समझा सकें, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें? जरूरी नहीं है कि उसकी हैंडराइटिंग बदल के आप इम्प्रूवमेंट ला सकें, आप काउंसलिंग से भी उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। थर्ड इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के अंदर ग्राफोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा काम में आ रही है। ग्राफोलॉजी को बड़े बड़े क्रिमिनल्स लाइक, मतलब आप अगर थोड़ा सा गूगल करके देखेंगे तो ग्राफोलॉजी बड़े बड़े टेररिस्ट की एक छोटे से जो पर्चे लिखे हुए होते हैं ना, कि मतलब जो भी उनकी कोड लैंग्वेज के अंदर, उससे बड़े बड़े ग्राफोलॉजिस्ट ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये आदमी किस माइंडसेट का था, कहाँ का था, किस जगह का था, किससे कनेक्टेड था, क्या था। इतनी डीप एनालिसिस हो जाती है उस छोटे से पर्चे से। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर ग्राफोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। आप समझिए इस चीज को कि अगर हम मार्केटिंग के आदमी को बैकग्राउंड के अंदर HR में बैठा दें तो वो कैसे काम करेगा। अगर हम एक आदमी को ये सोच के रखें कि इसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है तो किस तरीके से काम करेगा।
अगर आप ये सोचिए कि किसी आदमी को आपने रखा कि अरे बहुत बढ़िया आदमी है, इसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से काम करता है, पर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं हो तो क्या काम का वो आदमी? हम बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कि चलो काम 19 कर ले भाई, पर कम से कम झूठ साच मत कर। पैसा डुबो दे तू, 10 रुपए 20 रुपए लाख रुपए डुबो दे, पर झूठ झाट मत कर। अगर हमें ये मालूम चलने लग जाए कि ये आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल है या नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेशेंस से काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा, इसका मेंटल लेवल किस तरीके का है, तो सोच के देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कितना 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 इजी हो जाएंगे। सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग योर ओन लाइफ पार्टनर। सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, अरे ग्राफोलॉजी क्या ज्योतिष का भी काम कर रही है? जी नहीं, ग्राफोलॉजी ज्योतिष का काम नहीं कर रही। पर आप ये सोच के देखिए, अगर हमारे पास में 2 हैंडराइटिंग सैंपल्स हैं कि लड़की इस तरीके की है और लड़का इस तरीके का है, तो आप एक चीज बताइए, क्या एक एग्रेसिव लड़के के साथ में बहुत शांत और शालीन लड़की, क्या वो कोप अप कर सकेंगे? नहीं, पहले दिन ही सर फोड़ेंगे और दूसरे दिन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमें इस तरीके के ट्रेट्स उन सब के अंदर देखने पड़ते हैं, हमें इस तरीके के ट्रेट्स हैंडराइटिंग में देखने पड़ते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे लाइफ पार्टनर को ही नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारा स्ट्रेस है, कई सारे टेंशन्स हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का, क्या स्ट्रेस है उसके पीछे। अगर ये सारी चीजें हमें मालूम चलने लग जाए और उस छोटे छोटे चेंजेस से हम इंप्रूवमेंट ला सकें, तो क्या लाइफ और बेटर हो सकती है। सेलेक्टिंग अ बिजनेस पार्टनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल थिंग। किसी नए आदमी के साथ काम करने जाने से पहले हमारे दिमाग में इतने सवाल जवाब होते हैं जिसका शायद हम खुद भी प्रॉपरली कोई जवाब नहीं दे सकते होते हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे लिए लॉयल है, या हम जिस तरीके के काम में उसको करवाना चाहते हैं क्या वो उस तरीके का काम कर सकेगा, तो लाइफ शायद कितनी इजी हो जाए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ग्राफोलॉजी हमारे स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमारे थ्रेट्स अगर मालूम करने लग जाए। सोच के देखिए, कई बार कई लेडीज को मैंने ये सोचते हुए बोलते हुए सुना है, अरे ये मेरे से नहीं होगा, अरे ये तो काम ही नहीं है मेरा। जब हम एनालिसिस करते हैं, कुछ हमारे पास में इस तरह से मदर्स आती हैं, बच्चे आते हैं, एडल्ट मेल्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, तो हमने एनालाइज करके बताते हैं कि ये देखिए ये 10 तरह की स्ट्रेंथ है आपके दिमाग में जिन्हें आप काम में ही नहीं ले रहे हैं। हम उन्हें इस बारे में ब्रॉडर कंसेप्ट पे बात करते हैं और हम उनको ये सारी चीजें समझाते हैं कि अगर आपने ये सारी चीजें काम में ली तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इम्प्रूव होगी। कई बार ऐसा होता है कि इतनी तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे पास में, पर हम कभी भी उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस या हमने जो बचपन में सीखा होता है या जो हमारे सबकॉन्शियस में भरा होता है, उसकी वजह से हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से हमारे पास नहीं आती, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम उसके पास जाकर भी वापस आ जाते हैं। बहुत सारी हमारी वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से हम काम पूरे नहीं कर पाते, उन्हें अचीव नहीं कर पाते, और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके डर के मारे हम कोशिश भी नहीं करते। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। Let's move forward. ओके डन। अब ये हमारी सबसे हमने सबकॉन्शियस की बात कर ली, हमने माइंडसेट की बात कर ली, हमने ये देख लिया कि हमारे सबकॉन्शियस में जो फीडिंग हुई है वो कहाँ से हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर फीडिंग हुई है जो बचपन से इवेंट्स हमारे साथ में हुए हैं उससे। आपने ये चीज देखी होगी कि कुछ
ऐसे लोग होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मेल और फीमेल, जो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फीमेल्स होती हैं, कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं पब्लिकली, पर कुछ ना कुछ ऐसा मौका देखकर उनको पीछे वापस खींच लेते हैं। ये भी हम हैंडराइटिंग में मालूम कर सकते हैं कि इस तरीके के लोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं इस तरीके के लोग। इस तरीके के लोगों के बचपन के अंदर उनके साथ कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जो इस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बचपन में इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके अंदर किसी लेडी ने उसको परेशान किया है। अब आज उसके सबकॉन्शियस में ये चीज फीड हो चुकी है कि जो फीमेल है वो हरदम उसको दबाने का या उसकी लाइफ खराब करने का इस तरीके का काम करेगी, और फिर उसके बाद में उसका कुछ भी सही नहीं होने देगी। अब आप सोच के देखिए, एज अ पेरेंट, एज अ फादर ऑफ अ डॉटर, अगर ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी हो जाए तो हाँ, हम ये भी ग्राफोलॉजी में मालूम कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी में इसको शशांक बोलते हैं। ग्राफोलॉजी में इसको शशांक बोलते हैं कि जिनकी हैंडराइटिंग में शशांक होता है, भाई बहुत डेंजरस होते हैं वो लोग। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाया जा सकता, पर अगर छोटी मोटी नॉलेज से हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें डिस्टेंस बना के रखना है आपसे, या ये बिहेवियर इस आदमी का क्यों है, या ये बिहेवियर इस लेडी का क्यों है। ये सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी ये बहुत बड़ा इश्यू होता है। चलिए मैं आगे आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसे टिप्स दिखाती हूँ, या मैं कुछ आपको ऐसी हैंडराइटिंग्स बताती हूँ, या मैं आपको कुछ ऐसे लेटर्स बताती हूँ। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लेटर्स बताऊंगी जिनसे, छोटे छोटे लेटर्स को आइडेंटिफाई करने से आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, स्पेशली लेडीज एंड जेंट्स हु आर वर्किंग, आप ये छोटी छोटी चीजों को देखकर उन बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि ये हमारा पेज होता है। मेघना, इज इट विजिबल? Yeah, it's visible. ओके, ये हमारा पेज होता है और पेज पे इस तरीके के मार्जिन्स बने हुए होते हैं। जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, आपने देखा होगा जो लाइंड कॉपीज मिलती हैं बाजार के अंदर, उसके अंदर एक स्पेसिफिक मार्जिन्स बने हुए होते हैं। उन मार्जिन के पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो मार्जिन्स किस वजह से बने हुए होते हैं। आज तक हमने तो सिर्फ यही सोचा होगा कि ये मार्जिन्स इसलिए बने हुए होते हैं कि चलो ढंग से और सफाई से लिख सकें, पर इन मार्जिन के पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है ग्राफोलॉजी के अंदर। एक होता है हमारा लेफ्ट मार्जिन। मैं आज जो चीजें आपको बताऊंगी वो बहुत बेसिक हैं, पर इसके अंदर बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है, तो हम वो सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। अब जैसे लेफ्ट मार्जिन होता है और एक राइट मार्जिन होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो लेफ्ट मार्जिन में भी स्लांट लेफ्ट मार्जिन, राइट लेफ्ट मार्जिन, और बहुत तरह के अंदर वो होते हैं। लेफ्ट मार्जिन जो होता है वो आदमी का पास्ट, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, इन सब चीजों के बारे में हमें आइडिया देता है कि जो लोग लेफ्ट मार्जिन से लिखते हैं वो अपने पास्ट में कैसे थे, अपनी फैमिली में उनका बिहेवियर किस तरीके का है, अपनी सोसाइटी के अंदर उनका बिहेवियर किस तरीके का है। जो लेफ्ट मार्जिन वाले लोग होते हैं, लाइक दे आर वेरी 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 डिसिप्लिन्ड। यहाँ तो मार्जिन खिसी हुई है। बेसिकली हम लोग जब काम करते हैं बड़े होने के बाद में, तो हम हम प्लेन पेपर पे ज्यादा काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ रूल्ड या लाइंस वाले पेपर की जगह हम प्लेन पेपर पे ज्यादा काम करते हैं। तो जो लोग ये जो लेफ्ट मार्जिन है पेपर की, इस मार्जिन के बिल्कुल चिपका कर पास पास लिखते हैं, जो बिल्कुल पास पास लिखते हैं, और धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग मार्जिन से दूर होती जाती है। शुरू में वो पास लिख रहे हैं, धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग मार्जिन से दूर होती जा रही है। तो ये पता चलता है कि पास्ट के अंदर कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस में ऐसी फीलिंग है कि हम परिवार से दूर होते जा रहे हैं। नो डाउट ये लोग रूल्स को फॉलो करते हैं,
फैमिली के कल्चर को फॉलो करते हैं, फैमिली की सब बात मानते हैं, पेरेंट्स को केयर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर सबकॉन्शियसली कुछ इस तरीके के इश्यूज होते हैं कि ये अपनी फैमिली से दूर होते जाते हैं अगर लेफ्ट मार्जिन से ऐसे दूर होती है हैंडराइटिंग। अब हम आते हैं राइट मार्जिन के ऊपर। राइट मार्जिन जो होती है वो हमारा फ्यूचर बताती है, हमारी अपॉर्चुनिटीज बताती है, हमारी रिस्क बताती है, कॉन्फिडेंस लेवल बताती है। अगर ये राइट मार्जिन पूरी तरह से मतलब थोड़ा सा छोड़कर यहाँ पर अच्छे से कवर हुआ होता है, तो वो आदमी अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज जो उसके अंदर फ्यूचर में उसके पास आने वाली है उन्हें अच्छे से अवेल कर पाता होता है, प्रॉपर उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो लिखते लिखते पेपर के अंदर ही घुस जाते हैं पूरे, यहाँ पे ऐसे एक छोटा छोटा करके लिख देते हैं। ऐसे लोग बहुत 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 बुरे ड्राइवर्स होते हैं। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि लिखते लिखते हमें यही नहीं पता चला कि हमें रुकना कहाँ है। लिखते लिखते हमें यही नहीं पता चला कि हमें रुकना कहाँ है। तो क्या हम सही डिसीजन ले सकते हैं? क्या हम फ्यूचर को देख सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है? अरे हम इतना भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पेपर पे हमें कहाँ लिखना है। अगर हमारे पास इतनी जगह बची है जहाँ पे हमें रिस्क लिखना है और हमने ऐसे गुचड़ गुचड़ के यहाँ पे लिख दिया उसको, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारी स्पेस कितनी थी, जगह कितनी थी, कितनी जगह में हमें लिखना था। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑन अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत ज्यादा हम जिसे बोलेंगे कि कैजुअल होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा जो देखा जाएगा टाइप्स। वो लोग बैड ड्राइवर्स होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, पर जो प्रॉपरली राइट मार्जिन को काम में लेते हैं वो फ्यूचर की सारी अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से काम में लेते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो 2 लाइंस खिंची हुई हैं, एटलीस्ट आपका बच्चा बड़ा होकर जब व्हाइट पेपर पे काम करने लगे तो वो ये स्पेस छोड़कर काम करे, और स्ट्रेट उसकी मार्जिन होनी चाहिए, स्ट्रेट मार्जिन होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी मार्जिन ऐसे टेढ़ी जाएगी तो इसका मतलब मदर से या फादर से उसके कुछ ना कुछ टिडबिट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा परिवार से दूर हो रहा है। ऑन अ सिमिलर वे लेडीज और जेंट्स के लिए भी सेम चीज होती है। सो पॉइंट ये है कि मार्जिन हमें स्ट्रेट रखना सबसे अच्छा रहता है। अब कुछ होती हैं हमारी वेवी मार्जिन, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, तो अब आप वो बात समझ ही गए होंगे, जो अपने मार्जिन नहीं संभाल पा रहा या जो वहां सिस्टमैटिक काम नहीं कर पा रहा, उससे हम आगे और किस चीज की क्या उम्मीद करेंगे। पर कभी कभी ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस तरह के लोग भी चाहिए होते हैं। चलिए, अगर आपके पास में पेपर और पेन है तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर पूरे 26 लेटर्स आते हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अ बिग ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पूरे के पूरे 26 इंग्लिश के लेटर्स आते हैं। एक पेपर पे लिख कर देखिए इसको आपको, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं। कैजुअल सिर्फ इसलिए लिखिएगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है। और ग्राफोलॉजी कभी किसी को जज नहीं करती, ग्राफोलॉजी हरदम आपको एनालिसिस देती है। जजमेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, एनालिसिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। जज करना कोई अधिकार नहीं है किसी का भी। एनालाइज कर कर आपको किसी चीज का सही चीज बताना वो डॉक्टर भी करता है। लिखा आप सबने? Yes. अब अपना पेपर उल्टा करिए और देखिए कि आपने उसको बहुत दबाकर लिखा है। मतलब क्या आप यहाँ पर उस लिखे हुए को फील कर सकते हैं या आप उस लिखे हुए को फील नहीं कर सकते हैं? अगर आप उस लिखे हुए को फील कर सकते हैं तो आप वो इंसान हैं जो अपने काम में पूरा टाइम देते हैं, पूरा समय देते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क बहुत हार्ड होती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट।
क्या आप किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है वो आपके लिए। बट यस, ऐसे लोग बड़े लीडर्स होते हैं, उनकी हेल्थ वाइज भी वो स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी वो लोग स्ट्रांग होते हैं, फटाफट रिएक्ट करते हैं। तो फटाफट रिएक्ट करना, डिसीजन लेना हायर ऑफिशियल्स का बहुत अच्छा रहता है। इवन कभी कभी मदर एज अ होम मेकर भी क्विक डिसीजंस जब लेती है तो उसके लिए और फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइट प्रेशर वाले लोग इजी मूविंग होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, मतलब वो कोई शो ऑफ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कोई इमोशनल बैगेजेस नहीं लगते, लाइफ को इजी गोइंग लेते हैं। उनके लिए एब्सोल्युटली ओके होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, वो अपने आप को हैप्पी फील करने चाहिए। अब जैसे लाइट प्रेशर होता है, हैवी प्रेशर होता है, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है कि बहुत ज्यादा हार्ड प्रेशर है, कम हार्ड प्रेशर है, बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर है। बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर भी एक स्ट्रेस की बात है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे क्या डिजीजेस डेवलप हो रहे हैं कि आपके हाथ भी ढंग से नहीं चल रहे। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप हैवी प्रेशर वाले हैं या लाइट प्रेशर वाले हैं। ओके, अब आपने सब जनों ने पेपर के ऊपर लिखा होगा। देखिए कि आपकी हैंडराइटिंग लार्ज हैंडराइटिंग है या आपकी हैंडराइटिंग स्मॉल हैंडराइटिंग है। इसके अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं जिन्हें हम 1 घंटे के वर्कशॉप में नहीं ले सकते। पर अगर हम एक बेसिक मालूम करने की कोशिश करें कि लार्ज राइटर्स कैसे होते हैं और स्मॉल राइटर्स कैसे होते हैं, बात से समझ आता है। पेपर को पूरा काम में लेने वाले अपनी पूरी जगह चाहते हैं, हर जगह अपने आप को देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बोलने का बहुत शौक होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स लेना चाहते होते हैं क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। छोटे छोटे डिटेल्स पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लार्ज राइटर को बोलोगे कि ऑफिस के अंदर या घर के ऑपरेशंस के अंदर ध्यान दे ले, तो नहीं होगा। इस तरह के मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। कई फीमेल्स होती हैं जिनकी लार्ज हैंडराइटिंग होती है, वो घर के अंदर अगर आप ये सोचेंगे कि फलानी रैक के ऊपर ये वाली चीज में वो वाली चीज खराब हो रही है, तो उनका ध्यान उस पर नहीं जा सकता। पर अगर घर से रिलेटेड ओवरऑल कोई डिसीजन है, वो उन्हें बहुत अच्छे से ले सकती हैं। लार्ज राइटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो लोग कि बस ये काम होना चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आता, छोटी छोटी डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। उसी तरीके से उसके वाइस वर्सा होता है स्मॉल राइटर्स। अब स्मॉल राइटर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खराब हैं, पर हाँ, स्मॉल राइटर्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेके चलें कि हमारा बच्चा एक स्मॉल राइटिंग वाला है, तो हमें इसके लिए दुखी नहीं होना है, या हमारा बच्चा एक लार्ज राइटिंग वाला है तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। एक स्मॉल राइटिंग वाला बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है कॉन्सेंट्रेट करने की। हाँ, वो इंट्रोवर्ट बिहेव करेगा कभी कभी, पर वो बहुत थॉटफुल होता है, अपना टाइम स्पेंड करता है प्रॉपर तरीके से, वेस्ट नहीं करता किसी भी चीज को। उसी तरीके से हाँ जी, Please can you show large handwriting and small handwriting if it's possible? मैं आपको पेपर पे करके बताती हूँ। Yeah. मतलब जो आप ये मान के चलिए कि टोटल जब हम व्हाइट शीट के ऊपर लिखते हैं तो अराउंड 17 से 20 लाइंस, जब हम व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे लिखते हैं तो हमारी ऐसे लंबाई में 17 से 20 लाइन कवर होती हैं। और जो लार्ज राइटर्स होते हैं उनकी 15 के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि वो पूरा पेज, यहाँ पे बताती हूँ, वो पूरा पेज कवर कर लेते हैं 15 लाइन के अंदर ही। उसी तरीके से जो छोटे राइटर्स होते हैं, ये मैं आपको मीडियम राइटर्स के लिए बता रही हूँ जो 17 से 20 लिखते हैं। जो छोटे राइटर्स होते हैं वो 20 प्लस हो जाते हैं, वो 25 तक लाइन भी लिख लेते हैं। तो आप उस तरीके से एक बार आइडिया लगाइए कि छोटे राइटर्स और बड़े राइटर्स में क्या डिफरेंस हो जाता है।
ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, वो लोग जो यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, जिन्हें लोगों को हायर करना होता है, तो आपको ये देखना होगा कि मुझे किस तरह का आदमी किस जगह के लिए हायर करना है। उस हिसाब से आपको देखना होगा कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है। अगर आप बड़ी हैंडराइटिंग वाले आदमी को हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको इस तरीके का आदमी चाहिए जो बहुत अच्छे डिसीजंस ले सके, फटाफट काम कर सके, मतलब हायर ऑफिशियल्स के अंदर लेना होगा आपको। अगर कोई स्मॉल राइटिंग वाला आदमी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेशंस का आदमी चाहिए कि सिस्टमैटिक काम करे, पॉइंट टू पॉइंट काम करे, जितना कहा है उतना काम करे, अपना समय खराब नहीं करे, सब चीज थॉटफुली करे। जैसे फाइनेंस के अंदर जो लोग होते हैं, जो हमारे ऑफिस के अंदर फाइनेंस में जो लोग काम करते हैं, मोस्टली उनकी स्मॉल राइटिंग्स होती हैं, क्योंकि वो नंबर्स पे वर्क करते हैं, पैसे पे वर्क करते हैं, सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप छोटी राइटिंग वाले को ऑपरेशंस के लिए हायर करेंगे, कोई भी ऐसा काम जो डेली रूटीन का है, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो वहां पर स्मॉल राइटर्स ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है कि बेसिकली आप जब देखते हैं कि हमारी कॉपीज में ऐसे लाइन बनी हुई होती है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम नॉर्मल व्हाइट पेपर के ऊपर लिखते हैं। तो जो बेस लाइन्स होती हैं, जैसे स्ट्रेट बेस लाइन, वेवी बेस लाइन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेस लाइन के। ये है असेंडिंग बेस लाइन, ये है स्ट्रेट बेस लाइन, और ये है डिसेंडिंग बेस लाइन। जो स्ट्रेट बेस लाइन वाले लोग हैं, सिस्टमैटिक हैं, प्रॉपर अप्रोच है उनकी काम के लिए, एज सच उनको डिसीजंस में कोई इशू नहीं आता, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास वेवी बेस लाइन के लोग होते हैं। अब वेवी बेस लाइन मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक आदमी जो समतल तरीके से नहीं लिख पा रहा है, जो कभी ऊपर लिखता है, कभी नीचे लिखता है, कभी ऊपर लिखता है, कभी नीचे लिखता है, तो अब आप सोच के देखिए कि उसके डिसीजंस कैसे होंगे, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, क्या वो प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएगा। जिसका एक स्ट्रेट लाइन का डिसीजन नहीं है, क्या वो प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएगा, ये हमें वेवी बेस लाइन से पता पड़ता है। उसके बाद में आती है हमारी असेंडिंग बेस लाइन, जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। असेंडिंग बेस लाइन वाले जो लोग होते हैं, उनका ग्रोथ का प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, उनको ग्रो करना अच्छा लगता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं, उन्हें आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, उन्हें वो अच्छा लगता है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया था कि स्मॉल साइज के लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, मतलब स्मॉल साइज मतलब स्मॉल लेटर साइज, जो इंट्रोवर्ट हैं, कभी लोनली भी फील करते हैं, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट तो उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। उसी तरीके से डिसेंडिंग बेस लाइन वाले जो लोग होते हैं, like it's a big sign of depression. Descending baselines are very big example of depression. आप सोच के देखिए कि आप जीवन में ऐसे जाना चाहते हैं या आप जीवन में नीचे जाना चाहते हैं। जिनकी डिसेंडिंग बेसलाइंस होती हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज वापस बताती हूँ, जो स्ट्रेट बेस लाइन वाले होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर क्लैरिटी होती है, वो हर चीज के लिए अचीव करने के लिए प्रॉपर समय लेते हैं, प्लानिंग उनकी बिफोर हैंड होती है, ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो सेकेंड नंबर वाला है यहाँ पे, और मेंटल और फिजिकल डायरी मेंटेन करते हैं। मतलब कोई भी काम करने से पहले वो प्रॉपर तरीके से इसका विचार कर लेते हैं कि ये काम किस तरीके से कैसे करना है। सेकंड हम आते हैं वेवी बेसलाइन, जो अनप्लैन्ड है, अनस्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या करेंगे। कुछ लोग होते हैं हमारे घर में, स्टाफ होता है हमारे घर का, कि भगवान इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या करेगा,
ऑफिस के अंदर इस तरह के लोग होते हैं कि आज बढ़िया काम किया, कल घटिया काम किया, परसों उसके अलावा सब कुछ बिगाड़ा कर दिया। तो बेबी बेसलाइन वाले लोग इस तरीके से होते हैं। जो असेंडिंग बेसलाइन वाले लोग होते हैं, जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो गुड हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के एग्जैजरेटेड असेंडिंग बेसलाइन करते हैं। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाता है। हम एक बेसिक पे चलते हैं, उसके बाद में आती है हमारी लास्ट है डिसेंडिंग बेसलाइन, जो डिप्रेस्ड हैं, मेंटली हैप्पी नहीं है, बहुत नैरो माइंडेड हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा फेलियर्स फेस करे हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हाथ से गई हैं। स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि उनकी हैंडराइटिंग नीचे नहीं जाए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर वो टोटली डिजिटलाइज हो चुके हैं। टोटल डिजिटलाइजेशन की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये 4 बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अभी इन पिछले 4 महीने 5 महीने से बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं। अपने बच्चों की, फैमिली मेंबर्स की, किसी की भी अगर आपको बेसलाइंस नीचे जाती हुई दिखें तो प्लीज 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 दे नीड अ हेल्प, टॉक टू देम। मतलब आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से करेंगे, पर बात कीजिए, क्योंकि ग्राफोलॉजी समय लेगी उसे ठीक करने के लिए, पर वो उस स्टेट में है जहां उन्हें इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। मैं आपको, मेरे पास में एक सैंपल था, मैं आपको ऐसे किसी का सैंपल यहाँ पे दिखाना नहीं चाहती, पर कोई मेरे जानने वाले में थे, मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ, जिनकी ऐसी, ये डिसेंडिंग बेसलाइन है, एक होती है सोसाइटल बेसलाइंस, जिसमें ये जो वर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं और ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है, ये नीचे गिर रहा होता है, लिटरली गिर रहा होता है। मेरे पास में वो आए थे, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे नहीं पता थी ये बात। जनरली मतलब ऐसी कुछ बात चली थी कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है मैं अपना कुछ लिख के देखता हूँ, और मैंने मतलब लिटरली उनका सैंपल ऐसे देख के और अपने हस्बैंड को ये चीज बोली थी कि प्लीज इन्हें हेल्प चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ बहुत बड़े ट्रबल में हैं। और उससे 1 हफ्ते बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। वो सैंपल आज भी मेरे पास में पड़ा है। जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ ग्राफोलॉजी तो मैं उन्हें उस समय दिखाती हूँ वो सैंपल, कि ये मैंने लाइव एग्जांपल देखा था, पर मैं शायद कुछ मदद नहीं कर पाई, क्योंकि ग्राफोलॉजी इतना जल्दी कोई मदद नहीं कर सकती थी, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और उनके ये वर्ड्स घिर रहे थे। तो मैं जब भी कोई पेरेंट, टीनेजर पेरेंट मेरे पास में आता है या कुछ भी ऐसा होता है, मैं उन्हें सबसे पहली चीज ये बोलती हूँ कि आप ये बेस लाइन्स घिरने अगर लगती हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि घिर रही हैं या कुछ भी ऐसा, तुरंत 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 बात कीजिए अपने बच्चे से। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे इस तरीके के, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये ड्यूल पर्सनालिटी का आदमी है। अब आप देखिए, यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, इधर राइट में लेफ्ट में लिख दिया, उधर सीधा लिख दिया, इधर कुछ और लिख दिया, इधर कुछ और लिख दिया। बट ऑब्वियस कि ये आदमी, दिस पर्सन हैज अ ट्रबल मेकिंग डिसीजन बिकॉज द हेड एंड हार्ट आर इन कॉन्फ्लिक्ट। दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, लिखता कुछ और है, करता कुछ और है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत 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 खतरे वाला आदमी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत म्यूड स्विंग्स होते हैं ऐसे लोगों को। तो आप ये बेसिक सी चीज है जिसे चेक करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसे आदमी को हमें रखना है नहीं रखना है। या इस समय अगर आप ये चीज देखेंगे तो आप बच्चों की हैंडराइटिंग में भी ये देख सकते हैं। जो बच्चे बहुत सुंदर लिख रहे थे ना जब स्कूल जा रहे थे, तो उनकी हैंडराइटिंग में भी ये चेंजेस देख सकते हैं। हम बड़ों की हैंडराइटिंग में ये चेंजेस देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऐसी स्थिति हुई हुई है कि हमें नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो ये ड्यूल पर्सनालिटी वाले लोग हैं। मैं आपको वापस दिखा दूंगी अगर आपको इसको नोट करना है। दीज पर्सन्स आर ट्रबल मेकिंग। उनके डिसीजंस बिल्कुल खराब होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग और दिल दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऊट पटांग डिसीजन लेते। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, अपने को ऐसा फीलिंग होती है कि अरे ये कितने अच्छे इंसान है, बिल्कुल शांत स्वभाव के, ये वो है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मूड के होते हैं।
पल में आपको लगेगा बहुत प्रेम से बोल रहे हैं और दूसरे पल आपके एक थप्पड़ लगाएंगे ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये हुआ क्या, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ये इस तरह के लोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि हैंडराइटिंग के अंदर लो सेल्फ एस्टीम कैसे मालूम करी जा सकती है। जो हमारा ये टी का बार होता है, हम टी का बार बनाते हैं। आप सब जने अपना टी का बार बनाइए। देखिए कई जने आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये आपकी सबकॉन्शियस फीडिंग है जो आप यहाँ लिख रहे हैं। आप अपने टी बार्स को देखिए, अगर आपका टी का बार बहुत नीचे बन रहा है, आपको फेलियर का फियर होता है, चेंज का फियर होता है, गोल सेट करने में रिस्क लगती है, आपको लगता है लो रिस्क के काम करूं, ज्यादा माथाफोड़ी का काम नहीं करना, बैड सिचुएशंस में बहुत समय से रहने की वजह से ये इनपरफेक्शन आता है लोगों के अंदर। रेयरली उन्हें अपने आप को वो रेयरली सक्सेसफुल देख पाते होते हैं, इतना लो एस्टीम होता है उनका। लो एस्टीम का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को एकदम खराब देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। सिचुएशंस के चलते उनका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे गोल्स हम प्रॉपर सेट नहीं कर पाते। आप मिलते होंगे ऐसे लोगों से जिनसे आप ये पूछते हो कि अच्छा बताओ तो सही तुम्हें करना क्या है, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उन्हें करना क्या है। उनसे आप ये पूछोगे अच्छा कोई तो गोल सेट किया होगा अपने लाइफ में अपना, तो वो आपको जवाब देंगे कि हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी उनके साथ में पहले जिसकी वजह से वो ये सब कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अगर ऐसे लोगों का टी बार हम थोड़ा ऊपर करते हैं इस जगह पर, तो उनमें हमें इम्प्रूवमेंट लगता है। पर ये ग्राफोथेरेपी होती है, इतना आसानी से नहीं होता है, पर हाँ ठीक है, ट्राई करना इज नॉट अ बिग टास्क, हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। टी का स्टेम हमारा ऊपर होना चाहिए। टी का स्टेम बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि हम हवा हवाई के घोड़े हो गए कि बस सिर्फ दिमाग चलाए जा रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, पर एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट कुछ नहीं है। तो उससे बेटर तो हम यहाँ इसी सिचुएशन में हैं, कम से कम हम दिख तो रहे हैं कि हम ऐसे हैं। उसके अंदर तो हम हवाई उड़ान इतनी बड़ी भरेंगे कि हम ऊपर ऊपर टी के बाहर चलाएंगे और करेंगे कुछ भी नहीं, बातों के बहुत बड़े होंगे हम। ऐसे लोग मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखते हैं सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अब जब मैं आपको एक बात बोलूंगी तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जरूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात बोलने पर ऐसे फैल जाते हैं जैसे मतलब पता नहीं साहब आपने उनके घर का क्या बिगाड़ दिया। वो लोग होते हैं जिनके ये लूप्स देख रहे हैं ना आप, ये डी का लूप, ये टी का लूप, ये डी का लूप, ये लूप्स, ये बहुत ब्रॉड होते हैं। ये टी के लूप्स बहुत ब्रॉड होते हैं। द बिगर द लूप द मोर पेनफुल क्रिटिसिज्म इज फेल्ट। छोटी सी बात बोलनी होगी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम भी बहुत तरह के प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी से कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हम बहुत प्रेम पूर्वक बोल देते हैं नहीं नहीं साहब अगली बार ऐसा नहीं हो। तो अगर वो इस तरह के लूप्स वाला इंसान है तो वो अपने दिल पे इस बात को ऐसी ले लेगा कि अगली बार तो वो काम ही करने नहीं आएगा और 4 जन को ये और बोलेगा कि साहब रूना जी ने इतना बुरा बुरा और खराब बोल दिया, जबकि बात बहुत प्रेम से और एकदम सिंपल तरीके से बोली गई थी, पर उनसे सहन नहीं होता क्रिटिसिज्म। दूसरी प्रॉब्लम ऐसे लोगों के पास होती है कि ओवर इमेजिन करते हैं चीजों को। आपने स्पेशली जो हस्बैंड्स हैं यहाँ पे, आपने कई बार ऐसी चीज सुनी होगी, मैं ऐसा कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा बोल दूंगी तो वो मुझे ऐसा बोल देंगे, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कोई चीज हुई भी नहीं होती है, उससे पहले एग्जैजरेटेड थॉट प्रोसेस, बहुत ज्यादा थिंकिंग, और हम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई सामने वाला तो हमारे को क्रिटिसाइज ही करेगा, पहले से ये सोचने लग जाते हैं। इस तरह के जो लूप्स होते हैं वो लोग इस तरह के होते हैं। तो इस तरह के लोग अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं तो ये थोड़े से हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी ऊपर वाला भी कुछ बोलता है, कभी नीचे वाला भी कुछ बोलता है। अगर और वो क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकता तो ऑर्गेनाइजेशन में हरदम कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। झूठ बोलने वाले, ह्यूज इनर लूप्स,
that crosses signify a person that lies pathologically. One should not trust this person and verify all that is said. मेरे हस्बैंड की ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने लॉकडाउन से पहले करीब करीब 12 से 13 रिक्रूटमेंट्स करे थे, और ऑब्वियसली पहला रिक्रूटमेंट आप लोगों की एक्सपीरियंस पे होता है, जो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काउंट करता है। दूसरे लेवल पे हमने ग्राफोलॉजी लिया था रिक्रूटमेंट के लिए। तो मेरे पास में मतलब हमने क्या सिस्टम किया था, आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ। हमने सिस्टम ये किया था कि जब उन्होंने हमें सीवी दिया, उसके साथ में हमने सबको एक एक प्लेन पेपर दिया और ये कहा कि आप इस पेपर पर वो लिखिए जो आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में करते थे। आप इस पेपर पर वो लिखिए दीजिए जो आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में करते थे। पहला फिल्टर, बोलने पर आदमी 100 झूठ बोल सकता है, बहुत आसानी से बोल सकता है, वहां खत्म हो गया। दूसरा फिल्टर, जहां आप लिखने के लिए बोल देते हैं ना, वहां पर झूठ आधे तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और तीसरा फिल्टर हमने लगाया ग्राफोलॉजी के थ्रू। तो एक भाई साहब हमारे जो अकाउंटेंट के लिए, हमें एक और अकाउंटेंट चाहिए था, उसके लिए आए थे, उनके इस तरीके के ओ थे ऐसे, जिनको देखकर मेरा तो यूं हो गया था कि भाई इन्हें तो अभी यहाँ से रवाना करो, वरना ये जो आया गया सारा सिस्टम है ना आपका, ये पूरा बराबर करके जो अभी बैठी हुई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा बैठाने की काबिलियत रखते हैं। फिर भी हमने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार इनको इंटरव्यू तो देने देते हैं। उसके बाद में वो इंटरव्यू के लिए अंदर आए। उसके बाद में उन्होंने ऐसे 4 जनों के नाम लिए जो उस आदमी को नहीं पता था कि हमारे ही रिश्तेदार हैं, और दे झूठ इतना झूठ बोला उसने कि मतलब ऐसे लगने लग गया कि पधारो साहब आप। तो इस तरह के जिनके ओ हो, प्लीज उन्हें मतलब आप बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें। ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। घर में भी अगर बच्चों की हैंडराइटिंग में आपको ऐसा दिख रहा है तो प्लीज बच्चों से बात करिए। ये अभी इस समय बच्चों की हैंडराइटिंग में बहुत इजीली विजिबल हो सकता है, क्योंकि दिन भर वो कंप्यूटर पे हैं, टोटल डिजिटलाइजेशन है, उनको आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ रहा है, चाहते ना चाहते। आप बार बार बोलते हो कंप्यूटर मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो दिन भर आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप चेक कीजिए, ये उनकी हैंडराइटिंग में ट्रेड्स तो नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लाइक दे आर नॉट गुड फॉर किड्स। टॉकेटिव, कुछ टॉकेटिव लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टॉकेटिव लोग होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। कुछ टॉकेटिव लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके के लोगों को आप मार्केटिंग में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कि ये आपका ज्यादा बोल के सामान बेच के आ जाएंगे। ऐसे लोगों का एक प्रॉब्लम और हो जाता है, तो आर्यन म्यूट करेंगे अपन। या आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज मेंबर्स आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जिनकी वॉइस आ रही है। टॉकेटिव, ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे सिर्फ मार्केटिंग के अंदर अच्छे होते हैं, नहीं तो ये लोग इतना बोलते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन भी बाहर निकाल देते हैं जो आपके बिजनेस की सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के लोग हमारे घरों में भी होते हैं, जो यहाँ सुनते हैं, बस फिर उन्हें मौका चाहिए होता है कि कोई आ जाए और फटाफट बोल बाल के सारी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दें। आप एक बार इमेजिन कीजिए, आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी ध्यान आ जाएगा कि जो इस तरीके का है घर में, कि उसे बस आप बस दे दो कुछ, उसके बाद में वो मतलब वो जो मिलेगा खट 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 सबको वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो ये हमें चेक करना होगा कि हम किस जगह ऐसे आदमी को रखना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया लोग होते हैं अगर हम इसे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, और बहुत तकलीफ में रहते हैं अगर हम इसे घर के पॉइंट ऑफ व्यू पे या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें। ये जो लूप्स हैं, my cursor is visible? Yeah.
ये shown by a large round loop at the beginning of the word, usually a capital letter like W or M, but also found in S. S में भी है. Responsibility loops भी बोलते हैं इसको. This person has a desire to be needed by a large number of people. मतलब ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इसको भी मेरी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है. और अगर आप ये सोचेंगे कि तो हमें तो ऐसे आदमी चाहिए जिसको ये लगे कि मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगी, तुम्हारा काम भी कर दूंगी, तुम्हारा काम भी कर दूंगी, तो हमें ऐसे लोग तो चाहिए ही होते हैं. मतलब उनको एक तो ये लगता है कि हर आदमी को मेरी जरूरत है, और दूसरा ये लगता है कि किसी का मेरे बिना काम नहीं हो सकता. तो हर आदमी को मेरी जरूरत है जहां तक बात ठीक है, पर किसी का मेरे बिना काम नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम देने लग जाता है. तो ये भी जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी हद तक अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हम चाहते होते हैं कि खूब काम करने वाला आदमी हो हमारे पास में. पर ये लूप्स अगर लेडीज की हैंडराइटिंग में आने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ ही मेरा जिम्मेदारी हो गई, सभी कुछ मेरा है, मेरे ही पीछे सब कुछ होता है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता होता है. इस तरह की बातें करते हुए आपने कई लेडीज को सुना होगा. एग्रेसिव, हार्ड राइट स्ट्रोक्स दैट रिप्लेस अ लोअर लूप. आप देखते हैं वाई हमको स्कूल के अंदर ऐसे करके ऐसे सिखाते हैं. वाई हमें ऐसे सिखाते हैं स्कूल के अंदर. पर यहाँ पे वाई किस तरीके का लिखा हुआ है, ऐसे हवा में उड़कर. Aggressive person pushes forwards into future, asserting himself physically. Often these person need physical aggressive outlets such as competitive sports or even violence. ये जो लोग हैं इनके स्ट्रोक्स ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से. ये बेसिकली जब काम कर रहे हैं तो दिन रात काम कर रहे हैं, इनकी फिजिकल हेल्थ पे आ रहा है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं इन्हें. मतलब हमने ऐसा सुना है ना, अरे मेरा बच्चा तो अगर 3-4 घंटे खेले नहीं ना भयंकर, तो उसका तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है उसको. आप चेक कीजिए, ये चीज दिखेगी आपको हैंडराइटिंग में कि उनके जो ये स्ट्रोक्स हैं, ये वाई कभी ये पूरा वाई नहीं है, ये पूरा क्यू, ये सब पूरे नहीं है, ये यहां से घूमकर ऊपर आते हैं तब पूरे होते हैं. ये आपने आधा छोड़ दिया. मतलब इस तरह के लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, होम वायलेंस के वो हो जाते हैं, या नाराज हो जाते हैं तो मारपीट पे भी आ जाते हैं. तो प्लीज अपने वाई को हरदम पूरा कीजिए. यहां तक भी नहीं, पूरा यहां तक लेके जाइए अपने वाई को, ऐसे और ऐसे पूरा लेके जाइए अपने वाई को. आधा कंप्लीट मत छोड़िए, आपके काम अधूरे रहेंगे, आपके काम पूरे नहीं होंगे. ये इस तरह के लोग जब आपसे बात करेंगे ना, ये बोलेंगे दिन रात काम करता हूं ना, मैं थक गया बुरी तरह से, तबीयत खराब रहती पर मेरे काम पूरे नहीं होते. दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपके काम पूरे नहीं होते, क्योंकि आपका वाई पूरा नहीं है. ये एक बच्चे की हैंडराइटिंग है. Below handwriting is an indication of a child suffering from irritation within himself, herself and the surrounding. Child have lots of sorted anger within themselves. ये जो आप देख रहे हैं कटा पिटा, डबल बार लिखा हुआ, जगह नहीं छूटी हुई है बीच में लिखने के, तो ये बच्चा किसी चीज से नाराज है, कोई ग्रजेस हैं, कोई गिल्ट्स हैं, कुछ गुस्सा है इसके मन में. ये जो हम ऐसे काटने का सिस्टम होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो हम आपको दिखाना नहीं चाहते, कुछ मेंटल स्ट्रेस है जो हम बताना नहीं चाहते. तो ये एक बच्चे की हैंडराइटिंग है जो मतलब कुछ वेरियस रीजंस की वजह से नाराज है अपने पेरेंट्स से, बताना नहीं चाहता, कोई बात छुपाना चाहता है. अब टीनेजर्स हैं, सब चीजें हम खुद समझदार हैं कि उन्हें क्या इरिटेशन है, क्या नाराजगी है. ग्रोथ प्रोसेस की वजह से भी बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी हो जाती है. ये एक बच्चा है बेसिकली. अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे ये हैंडराइटिंग लेफ्ट में जा रही है, उसी तरीके से कुछ हैंडराइटिंग राइट में जाती है और कुछ स्ट्रेट होती है. तो ये जो लेफ्ट में जाने वाली हैंडराइटिंग है ना, ये बहुत कोल्ड एटीट्यूड, मतलब
ठीक है, ज्यादा बात करने का मन नहीं है मेरा, मुझे नहीं बताना कुछ भी, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। पर इमोशनली बहुत ज्यादा कोई हल्का सा डांट दो तो रोना आने लग जाएगा, आप तो हर चीज के लिए मुझे बोल देते हो, गुस्सा, नाराजगी, ये उस तरह की हैंड राइटिंग्स है। अब जैसे मैंने आपको उधर एफ स्लैंट बताया था, मतलब मैंने आपको राइट साइड लेफ्ट साइड वाला स्लैंट बताया था, उसी तरीके से नो स्लैंट, जो स्ट्रेट स्ट्रेट लिखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट हैंड राइटिंग लिखते हैं, वो लॉजिक और इमोशन पे काम, मतलब कोई इमोशन नहीं होता, प्रॉपर लॉजिक पे काम करते हैं और सॉलिड डिसीजन मेकिंग होती है उनकी। जो राइट की हैंड राइटिंग में लिखते हैं, हार्ट सेंटर्ड होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल नहीं होते, सेंटिमेंटल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं, ओह अच्छा ऐसे हो गया क्या। फैमिली, फ्रेंड्स सबको बहुत वैल्यू करते हैं। ये बी है, आप बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, ये बी यहां से खुला है और ये बी यहां से बंद है। बी का और ई का मेजर कनेक्शन होता है आपके डिजीजेस से। जो कोई भी लेटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3, मतलब फर्स्ट ऊपर अपर केस, फिर मीडियम और फिर लोअर। तो कोई भी चेंजेस आपके लोअर जोन में जब भी आएंगे, मतलब वो आपके डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर सबसे इस तरह के लोगों को आपको नहीं नजर आएगा कि उनको कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या उन्हें कोई हार्ट डिजीज है या कुछ ऐसा है, पर आप इस बात को मानिएगा, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में फिजिकली बाद में नजर आती है, इमोशनली पहले आती है। डिजीज का क्या सिस्टम होता है कि वो पहले हमारे ब्रेन पे आती है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है, तब वो हमारे बॉडी पार्ट पे जाती है। तो ये जो ओपन बीज हैं, ये हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, इसके लिए रीजन होता है। अब ये सब चीजें रीजन क्यों बनती हैं? क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ही समझने में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है। उनका जो इमोशनल फ्लो होता है, मतलब इमोशनल फ्लो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि हमारे मन में कोई बात है तो हम बोल दें, अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो हम बता दें। ये इमोशनल फ्लो भी हमारी रेगुलर रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ये इमोशनल फ्लो खराब होता है और हम ग्रजेस अंदर रखते हैं, हम स्ट्रेस अंदर रखते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स अंदर रखते हैं, तो हमें हार्ट डिजीजेस और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इस तरह के लोग अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ते। सेल्फ इंप्रूवमेंट हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बोले, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे बोले, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे बोले, कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते होते हैं। सिमिलर वे में एक ये वाला बी होता है जो पूरा क्लोज्ड है और सही है। ये अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। इमोशनल फ्लो इनका अच्छा होता है, अगर इन्हें कोई तकलीफ हो रही होती है, दुख हो रहा होता है, तो ये लोग फटाफट बोल लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रहते हैं, और इनकी कंसिस्टेंसी रहती है कि ये खुद को ग्रो करें बेटर। इनका नॉर्मल होता है सब ब्लड फ्लो और प्रेशर, इन्हीं सब चीजों की वजह से, तो इन्हें कोई ऐसा डिजीज नहीं होता है। अब आप एक चीज को देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि अगर हम इस तरह के बी वाले आदमी को, डिजीज की बात कर रहे हैं हम, अगर हम किसी भी तरह की डिजीज जिसको हम ग्राफोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और इस तरह के आदमी को अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, तो क्या एक घर से परेशान बीमार आदमी आपके लिए अच्छी तरह काम कर सकेगा? तो जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये सारी चीजें काम में लेते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि कोई बीमारी, कोई घर परिवार की परेशानी, कोई फैमिली ट्रबल, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे तो नहीं है जिसकी वजह से नहीं काम कर पाएगा प्रॉपरली। अब हमारे ई पर, ई भी हमारा बीमारी का सबसे ज्यादा मालूम करने वाली चीज है। ये एक प्रॉपर ई है, और 5-6 ई इस तरीके के बनते हैं जिसमें ये लूप्स बिल्कुल क्लोज हैं, किसी में बिल्कुल हैं, थोड़े से हैं। तो जैसे जैसे ये लूप्स छोटे होते जाते हैं, मतलब ई मतलब ईयर, ई फॉर ईयर, ये हमने प्ले ग्रुप में सीखा है, ई फॉर ईयर। सिमिलर वे में ई फॉर ईयर यहाँ पे भी होता है कि आपके कान कितने खुले हैं और कितने बंद हैं।
अब आप ये देखेंगे तो इसमें कान खुले हैं और ये देखेंगे तो इसमें कान बंद हैं। अब अगर आपके कान बंद हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पुअर लिसनर हैं। आपके कान खुले हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, आप नॉलेज को लेना चाहेंगे, सामने वाले को समझना चाहेंगे, उसकी बात समझना चाहेंगे। अगर आप पुअर लिसनर हैं तो आपका सबसे पहला सेंटेंस ये होगा, सब आता है हमको, हमें मत समझाओ आप। छोटे बच्चे, अरे सारी बात मुझे ही बोलते रहोगे क्या, सब मालूम है मुझे इसके बारे में। बड़े लोग जिनके ईज बंद होते हैं, अब ये ज्ञान हमें ही दोगे क्या। तो हमारे ई खुले होने चाहिए। जब हमारी सुनने की, समझने की ये सारे प्रॉब्लम्स हम हमारे अंदर इकट्ठे करते हैं, और ई जो होता है वो मिडिल जोन का लेटर होता है। आपने 4 लाइन कॉपी देखी है छोटे बच्चों की इंग्लिश की, 4 लाइन वाली कॉपी जिसमें वो इंग्लिश लिखते हैं छोटे बच्चे, उसके अंदर ई लेटर सेंटर वाली लाइन में आता है, तो इसे मिडिल जोन का लेटर बोलते हैं। और मिडिल जोन मतलब स्टमक, किडनी, यूट्रस, ऐसे लोगों को ब्रेन से, क्योंकि इनके मोमेंट्स इस तरीके के होते हैं, तो इनको किडनी का प्रॉब्लम है, कोई स्टमक से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन रहेगा या डायरिया रहेगा, कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड गैस है, ब्लोटेड स्टमक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। So it's always good to write open ease, always listen to everyone and then do whatever you want to, but at least listen to everyone. हमें बच्चों के ईज हरदम ओपन रख रहे हैं, so that they are open for learning always. टी, मैंने आपको अभी सेल्फ एस्टीम और उसका बताया था। टी का ये हमारा हाई होना चाहिए, थोड़ा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाई होना चाहिए टी, जिससे कि हमारे गोल्स हाई हो सकें, सेल्फ एस्टीम हमारी हाई हो सके। गोल हाई होते हैं, सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जहाँ हमारे लो होते हैं वहाँ हम इनसिक्योर महसूस करते हैं, हमारे गोल्स भी हम छोटे ही बनाते हैं, हम रिस्क लेना नहीं चाहते होते हैं। तो हमारा टी का बार थोड़ा हाई होना चाहिए। इससे ऊपर टी का बार हवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर टी का बार जाता है तो मतलब हम हवाई घोड़े हैं, बस सिर्फ बातें करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। आई, मैं अपनी हैंडराइटिंग शेयर करूंगी आपसे ग्रुप पे, आप देखेंगे ये मेरा आई है। ये मेरा आई है और मैं इतनी कोशिश करती हूँ इसे ठीक करने की, पर शायद मैं 4 दिन बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सही करती हूँ, पर मैं शायद वापस यहीं आ जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक बेसिक बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर है ये एक मेरा। पर कुछ चीजें इसकी अच्छी हैं, कुछ चीजें इसकी बुरी भी हैं। ऐसे वाले आई के जो लोग होते हैं वो अपने ड्रेसिंग के लिए भी कॉन्शियस रहते हैं, पर वो लोगों को यही बोलते हैं कि अरे ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब कॉन्शियसली वो अपनी ड्रेसिंग को लेके कॉन्शियस होते हैं। और उन्हें आसपास लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो उन्हें कुछ ना कुछ उनके कपड़ों के बारे में बोल ही देते हैं, तो वो प्रूव कर देते हैं कि साहब आप जो कॉन्शियस हो रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। आर्टिस्टिक होते हैं, चाइल्ड लाइक होते हैं, बातें करते हैं, प्लेफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, बट क्योंकि थोड़े से हैप्पी को लकी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बड़े बड़े ऊपर के डिसीजंस में हैप्पी फील करते हैं। सेकंड आई ये होता है जिनको ग्रेट अटेंशन, डिटेल चाहिए होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, हर चीज सिस्टमैटिक चाहिए होती है, कभी कभी काफी ज्यादा सीरियस भी बिहेव करते हैं। तो ये 2 तरह के आई हैं। हालांकि ग्राफोलॉजी के अंदर करीब करीब 16 से 17 तरह के आई होते हैं। That's my eye. वेरी नाइस। तो सारे लोग मतलब सारे सब कुछ अभी डिस्कस नहीं हो सकता, पर एक बेसिक आइडिया आपको लग सकता है। लिटिल स्पेसिंग एंड इवन स्पेसिंग। आपको अभी मैंने एक बच्चे की हैंडराइटिंग दिखाई थी जिसके अंदर आपने देखा था कि बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, पुअर मैनेजमेंट था। क्यों आप पुअर मैनेजमेंट, हम बहुत बेसिक सी बात है, इसे समझने की कोशिश करिए कि हमें यही आइडिया नहीं लगा कि हमें इसके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो हम क्या मैनेज करेंगे। उसी तरीके से इवन स्पेसिंग है तो अपनी बाउंड्रीज के बारे में मालूम है, अपने सारे सिस्टम्स के बारे में मालूम है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, सब कुछ सिस्टमैटिक कर रहे हैं।
इवन स्पेसिंग वाले लोग। लूप्स पे आते हैं अब हम। ये एल का लूप है, एल और टी के लूप्स को चेक करेंगे हम। एल का जो लूप है, अगर एल का रूप इस तरीके से है तो हमारे बिग होप्स हैं, ड्रीम्स हैं फ्यूचर के लिए। आप कई लोगों को देखेंगे उनके एल में यहाँ लूप ही नहीं होता, तो उनका सब कॉन्शियस जो है उसमें उनको कुछ स्ट्रेस है जिसकी वजह से उन्होंने अपने ड्रीम्स को स्क्वीज कर लिया है। जो आपका एल का लूप है वो खुला है, मतलब आपके ड्रीम्स, आपका फ्यूचर, आपके होप्स, आपके गोल्स सब कुछ खुले हुए हैं। जहां आपका लूप बंद हुआ, आपने इन सब चीजों को स्क्वीज कर दिया है, स्क्वीज कर लिया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड डूइंग इट, कि आपके साथ कोई एपिसोड ऐसा हो गया होगा या आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस इस तरीके का हो गया होगा, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने अपने ड्रीम्स को आपने बड़े लोगों को सुनते हुए सुना होगा इस तरीके से कि साहब हमने तो हमारे सब सपने वपने सब खत्म कर लिए, अब तो ये जो बच्चे कर रहे हैं वही सब ठीक है, अब हमारे ये तो सब बंद कर लिए। So there is a reason behind everything happening and there is a reason behind somebody writing this way. Looped T, sensitive to criticism, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। Traced T, good worker, disciplined and self control, this is the perfect T. ये वाला जो T है आप देखिए, लूप बहुत टी बार नीचे भी नहीं है और बहुत टी बार ऊपर भी नहीं है, ये एक परफेक्ट T है। बच्चों की हैंडराइटिंग, जो बच्चे नए नए लिखना सीखते हैं उन्हें इसी T को लिखना सिखाइए, कोशिश करिए कि वो ऊपर नीचे नहीं लगाएं। अगर डे 1 से आप कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगाएंगे। वाई, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये 0.1% है ग्राफोलॉजी का। बस अब हमारे पास में सिर्फ 5 मिनट और हैं। मुझे एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि 4:30 बजे का टाइम है, प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा आप बात नहीं करोगे। हालांकि मैंने इन सबको बता दिया था कि मेरा आई गोल है ऊपर से। वाई, देखिए आप इसे भी मैं पूरा वाई नहीं मानती हूँ, ये ऊपर जाना चाहिए। और यू आर सेलेक्टिव इन हू यू कॉल अ गुड फ्रेंड, मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत लोग हैं आप जिनको जानते हैं, पर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इनमें से सबसे खास मेरा कौन। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ब्रॉड वाई है, लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, खूब दोस्त हैं, जम के खुश रहते हैं, पार्टी करते हैं, फन करते हैं, काम पूरे करते हैं, अच्छा फिजिकल वो है आपका स्ट्रेंथ और सब चीज है। ये है जो ये बंद है यहाँ पे, दे लव टू ट्रैवल। आस्था का सैंपल है मेरे पास में, मैंने शायद आस्था को एक बार एनालिसिस दिया था, तब मैंने उसमें राउंड करके भी बताया था। तब शायद मैं इतना नहीं जानती थी कि उसे ट्रैवल करना पसंद है, पर मैंने जनरली ऐसा पूछा था। तो आस्था के वाई कुछ इस तरह के थे। वाई शॉर्ट, ये होम बडी, होम बडी मतलब अल्टीमेटली आप ये देखिए कि नॉर्मल साइज से हमने किसी भी चीज को स्क्वीज किया तो हमने अपने आप को एक अंदर घुसा लिया किसी चीज के। तो ये इस तरीके के वाई हैं। वाई भी कम से कम 20 से 25 तरीके के होते हैं, पर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये मैंने आपको एक हैंडराइटिंग एनालिसिस का एक बेसिक्स दिया था कि आप ये सारी चीजें मालूम करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखा रही हूँ कि हम एक ड्राइंग एनालिसिस भी करते हैं। ये हम करते हैं 6 साल से 10-11 साल तक के बच्चों के लिए। ये एक ड्राइंग एनालिसिस भी हम करते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, क्योंकि ज्यादा छोटा बच्चा है उससे हम क्या लिखवाएंगे, उससे हम ड्रॉ कराते हैं और मदर से लिखवाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एक बच्चा है जिसने 2 घर ड्रॉ करे हैं, एक ही पेंटिंग में इसने 2 घर ड्रॉ करे हैं। एक घर बेसिक सा सिंपल सा और एक फैंसी सा कुछ घर ड्रॉ किया है। तो मैंने उसकी मदर से ये चीज पूछी कि आपका घर कैसा बना हुआ है, आपका ननियाल कैसा बना हुआ है। तो उस लेडी ने मुझे ये बताया कि मेरा ननियाल जो है ना वो बड़ा सा फैंसी सा हाउस है और हमारा घर एक मतलब हायर मिडिल क्लास और एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग सा बना हुआ है।
तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके बच्चे को ननिहाल जाना ज्यादा पसंद है? उन्होंने कहा हाँ ज्यादा पसंद है। तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, इस वजह से 2 घर बनाए हैं, जिसमें उसने ननिहाल को बड़ा फैंसी बनाया है और नॉर्मल एक घर बनाया है। जब बच्चा ड्राइंग कर रहा था तो मैं उससे बात कर रही थी। जब मैं बच्चे से ये बात कर रही थी कि मम्मा आपसे कैसे प्यार करती है, आपको कैसे अच्छा लगता है, तब तक वो बहुत स्मूथ और अच्छी कलरिंग कर रही थी, बच्ची लड़की थी। उसके बाद में जब मैंने उससे पूछा आपका भाई कैसा है, तो उसने एकदम ऐसे ना यूं गुस्से गुस्से से ड्रॉ करना शुरू किया। तो मैंने उसकी मम्मा से ये चीज पूछी कि भाई से झगड़ा करती है? तो उसकी मम्मा ने बोला अरे भाई तो सिर्फ 3-4 महीने का है, किस क्या झगड़ा करेगी। मैंने कहा पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि भाई की बात करने से उसने ऐसा किया, इसका मतलब भाई से कहीं स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 6 साल का बच्चा एक 3-4 महीने का बच्चे को घर में देखकर स्ट्रेस महसूस कर ही रहा था। पर हमने और भी उससे काफी सारे डिस्कशंस किए, पर अब वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है। तो ये एक बेसिक्स थे ग्राफोलॉजी के जो मैंने आपको बताए थे। मेरे पास में कई जनों के सिग्नेचर्स भी आए हैं, कई जनों की हैंडराइटिंग्स भी आई हैं, बट हम एज अ ग्राफोलॉजिस्ट एक एथिक्स होते हैं हमारे कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी की भी हैंडराइटिंग एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जो इस साइंस को समझता है वो जानता है कि आपकी हैंडराइटिंग आपका कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपकी हैंडराइटिंग आपका दिमाग है। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबने जिन जिन ने मुझे हैंडराइटिंग भेजी है, मैं उन सबको उसका कुछ ना कुछ पर्सनल पे जिस्ट दे सकूं, जिसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। Thank you so much for joining in numbers. Thank you so much, the whole team who worked hard. Thank you so much for all the people from Jaipur chapter Apex who have attended the program. Thanks a Runa? lot. Ji Meghna. We are having a lot of dignitaries with us, so I would request them to speak something for us. We are having Vivek Ji Kala, chairman of Jito chapter, and Jinendra Ji Muno, chief secretary, and Sanjay Ji Kala with us. So I would request Aryan to unmute them. I would request you all to speak something. जय जिनेंद्र विवेक अंकल। हाँ जी, कैसे हैं? सब बढ़िया भाई मजा आ गया देख करके। हमको तो आइडिया नहीं था कि नेटिंग से इतनी चीजें देखी जा सकती है। Thank you uncle, thank you so much. अच्छा ये लगेगा जब हमारी नेटिंग देख के हमारे बारे में बताओगे या किसी के नेटिंग के बारे में उसको बताओगे, तो वो आदमी ये कह सकता है आपकी इस मंच पे आके कि हाँ भाई रूना जी ने हमको ये चीजें बताई थी। इट मीन्स जो कह रही है वो रियल में सही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर जरूर। क्योंकि अभी तो आपने अपना पक्ष रखा है, कोई दूसरा इसको सपोर्ट करेगा ना जी तो इसमें ज्यादा होगा। जरूर जरूर। और मुझे खुद को भी एक बार लिखना पड़ेगा सब कुछ, और आपकी जो बातें कही है उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये कितनी सही चीजें प्रूव हो रही है। पर रियली आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये माताएं हैं, इनको अपने बच्चों को उनके हैंडराइटिंग को भी देख करके आइडिया होगा। तो मैं समझता हूँ बड़ी नॉलेजेबल और एजुकेशनल आपकी स्पीच है। और एक बात आप सब जयपुर लेडीज विंग को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले 5 महीने का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है, और ये जो वेबिनार करके नई नई चीजें, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। आप देखो हमारे यूथ विंग या जो मेन है उसने कुछ नहीं किया है, जो मेन प्रोग्राम आप भी लोग दे रहे हो। तो लेडीज के अंदर जो आर्ट है, जो टैलेंट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच अंकल। स्पेशली रूना जी को थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I would request Sanjay Ji Kala to speak something. We are also having Ajay Ji Godha and Vimal Ji Singhvi with us. आज के आपकी ग्राफोलॉजी वाली जिसका पहले से भी इंतजार था, 2 वीक पहले भी आपने अनाउंस तैयारी कर ली थी,
एंड बहुत अच्छी रही, ऑलमोस्ट पूरा सुना मैंने और समझा भी। और अच्छी बात ये रही कि मैंने पेपर लिया हुआ था तो मैंने भी बहुत सारे अक्षर बनाने की कोशिश की कि वाकई में अपने ऊपर कितने अप्लाई होते हैं और कितने नहीं होते। पर कंफ्यूजन ये रहा कि वाई बनाने लगे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा कि रोज अपन कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपने खुद ने इतने सारे वाई बना के दे दिए तो हमारा ओरिजिनल वाई गायब हो गया। बट इट वाज रियली गुड, इट वाज आई मीन इट वाज नॉट ओनली फन पार्ट एक अलग है कि एक आप जैसे हाथ भी दिखाते हो तो भी वो आपको बताता है तो आप फन के तरीके से भी लेते हो। बट जो जो चीज़ें बताई और ख़ास तौर से जो इसमें आपने एक जो खास बात बताई है कि करेक्शन भी करा सकते हो आप, और वो जो करेक्शन हैंड राइटिंग में अपन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अपने डेली लाइफ में या आपके व्यवहार में या आपके तरीके में या रिजल्ट में आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जनरल समझना तो ये होता है कि हम उसके लिखे हुए से आदमी की पर्सनैलिटी समझें, पर दूसरा उसका बेटर पार्ट ये है कि उसके करेक्शन से जो आपकी हैंड राइटिंग है उसमें अगर अपन करेक्शन करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स में फर्क आएगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं बीच में बोलना चाहूंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर मेरे पास में एक बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लिखा हुआ आया था। तो मैं बताना चाहूंगी, जो भी है वो समझ गए हैं कि किसके लिए लिखा, किसने लिखा हुआ भेजा था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो एफ लिखा है, जो नीचे जो एफ है वो खुला है और ऊपर वाला जो एफ है वो बंद है। तो जिनका एफ नीचे से खुला होता है उन लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, पर वो लोग एग्जीक्यूशन किसी और से करवाते हैं। उन जिन लोगों का एफ नीचे से खुला हुआ होता है उन लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, वो इवेंट बहुत शानदार तरीके से प्लान कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं इससे बात कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इस करने से बिल्कुल सही हो जाएगा, पर वो आपको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, प्रोग्राम को खुद नहीं करते। वो ये बोलते हैं कि ये मैंने आपको प्रोग्राम तय करके दे दिया है, अब आप कर आप लोग। तो ये जो नीचे से खुला एफ होता है, एक होता है जिनका एफ ऊपर से खुला होता है और नीचे से बंद होता है, तो वो होते हैं एग्जीक्यूट करने वाले लोग। वो प्लान नहीं कर सकते, वो ये बोलते हैं कि भाई मुझे बता दो क्या करना है। तो परफेक्ट एफ वो होता है जो ऊपर से और नीचे से दोनों से खुला होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वो समझ जाएं कि आप बिल्कुल वही आदमी हैं जो प्रोग्राम प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट बाकियों से करवाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका एनालिसिस निश्चित रूप से जिन्होंने भी लिखा है उनको पसंद आएगा। इट इज़ रियली गुड। और आज का प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा रहा और आई कॉन्ग्रेचुलेट होल ऑफ द टीम, क्योंकि अभी आपके जो चल रहा है, रूना जी तो चेयर कर ही रही हैं, पर जो पूरी टीम है वो काम कर रही है। और महीने की महीने जो आपने एक एक को काम दे रखा है एग्जीक्यूटिव को, और वो जिस तरीके से इसको परफॉर्म कर रही हैं, दैट इज़ रियली गुड। उससे उनकी जो नेचुरल स्किल, जो लीडरशिप स्किल है, जो मेहनत करने की स्किल है, वो डेवलप हो रही है, विच इज़ रियली कमांडेबल। और इससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका अपन दे रहे हैं। और ये सिर्फ जीटो के लिए नहीं, बाकी भी और फॉर्म ऑफ जो उनके लिविंग है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। मे बी इट इज़ बिजनेस और मे बी देयर होम थिंग, पर सब में वो बड़ा हेल्प करेगा। यू आर डूइंग रियली गुड, वंडरफुल जॉब। Thank you, Sanjay uncle. Thank you Thanks so a lot for kind words. We are also having Vimalji Singhvi and Jinendriji Munod and Ajayji Goda with us. So we welcome them. Thank you. If anybody want to say anything. As a secretary, Jito Jaipur, Jinendra Kumar Munod. Thank you very much. You are doing very good. और बहुत बहुत बधाइयाँ रूना जी को, और उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए, पहले भी मांगा था, शायद वो दे पाएंगे। कुछ चेंजेस चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका ये सशक्त का प्रोग्राम सिर्फ 2 दिन 4 दिन या 2-4 वीक नहीं चले, पूरे टेन्योर तक चले, नई नई प्रतिभाएं सामने आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू। Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. I would request Ajay Ji Goda, please you can speak some words for us. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इतना सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने दिया है। खास बात ये कि मेरी रूना जी से कल बात हो गई थी कि कैसे क्या वो कुछ होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड था। इसलिए मैंने मेरी पूरी फैमिली को
इवन मेरे भाभी को, मेरी दोनों बेटियों को, ब्रदर की बेटियों को, पूरी फैमिली को मैं यहाँ साथ लेके बैठा और हमने सबने हाथ में हमारे पेपर और पेन था। जैसे जैसे रूना जी बता रही थी, जैसे मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी वाइफ, सब लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये तो मैं हूँ। मतलब आप ये देखिए कि जो वो बोल रही थी उसका परफेक्शन अभी ही चेक हो चुका है हमारी तरफ से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है और जो उन्होंने बताया है वो प्रूव्ड है। डेफिनेटली हम लोग अभी उनसे और सेशन लेंगे, अगर कहीं हमको चांस मिलता है उनसे डायरेक्ट मिलने का भी और सेशन घर बुला के लेने का, तो अभी टाइम नहीं है, बट हम फोन पे लेंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है और जितनी चीजें आपने एक्सप्लेन करी उसमें से मेजर हमारे घर में मौजूद थी और हम लोगों को ये प्रूव हो गया कि जो आप बोल रही हैं वो एकदम परफेक्ट है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कुछ नया हमने सीखा है और हम सोच रहे हैं कि शायद आप जल्दी एक